आज जो हम बात कर रहे हैं, it has to be between the parents, teachers and students. These three important pillars of education and life have come together. So we need to celebrate that moment where all these three pillars of life, where educators, parents and students, learners have come together. So let's clap for this wonderful moment. One thing, all these three are learners. Kids are not the one who are going to learn. We are also, as educators, learners. We as parents are learners. I have only one request as parents, because teachers do teach a lot of things to the students in the school. But as parents, they are observing us. So it's our duty to ensure that what has been taught in the school is actually modeled at home. And teachers, we are also parents. We should not forget that. So once when we model it, modeling always helps to ensure that it goes as control S in the mind. And that's where we get students. हमारे पास हमारे बच्चे ऐसे मिलेंगे. दूसरा important चीज़ है, सुबह उठ के बच्चों को हमेशा पूछो, what was your dream? कितने parents बच्चे को पूछते हैं, आज क्या सपना देखा? हम सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार करके सीधा स्कूल भेजते हैं. लेकिन सुबह उठ के एक बार बच्चे को पूछो, बेटा आज क्या सपना देखा? स्कूल की, पढ़ाई की, जिंदगी की मारामारी में हमने एडल्ट्स ने तो सपने देखने छोड़ दिए हैं. लेकिन बच्चों के सपने देखना, उन्हें डोंट स्टॉप देम ड्रीमिंग. फॉर मी एजुकेशन इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ दैट ड्रीम. एजुकेशन इज नथिंग एल्स. Let the child dream. और सपनों में बिल्कुल कंजूसी नहीं देखने में. Let them see the top. सपनों तो बिना पैसों के. And जो बच्चा सपने देखता है, वो always a happy child. And when he gets up in the morning, and when he comes and tells you the dream, give time to listen to that dream of a child. बस, and no judgment. Just सुनो. रोज सपने बदलेंगे, हाँ देखने दो. That is when we say explore the world. So दिन में जो भी explore करते हैं, वो रात में control S होता है. और वो सपनों के फॉर्मेट में, realization के फॉर्मेट में एक पिक्चर बनता है. So whenever someone tells me what is the definition of education, मैं रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी सबके definitions को साइड में रखती हूँ. मेरे लिए एक ही definition है. Allow the child to dream, and education is just a tool to realize the felicitation of that dream. हम लोग सिर्फ वही हैं. जब ये होगा तब बच्चा स्मार्ट बनेगा, सेंसिटिव. स्मार्ट बच्चा मतलब क्या? वो सेंसिटिव. बाजू में छोटा सा भी कुछ चीज हो रहा है ना, एक सेंसिटिव बच्चे के ध्यान में जो चीज जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल banega to make their character, to build their character. Character building is not in the stories of moral values. Character building comes with observation and sensitivity. So that smart child का S, make a child sensitive. अगर वो कुछ चीज कहीं देखता है तो टाइम दो उसकी बात को सुनने के लिए कि उसने क्या ऑब्जर्व किया रोड पे, घर पे. आज क्लास में कोई बच्चा परेशान है, कोई फ्रेंड परेशान है, कोई रिलेटिव परेशान है, कोई घर में पापा परेशान है, मम्मी परेशान है, उसको स्टॉप मत करो. Allow the child to express that moment of sensitization. Are you getting me? M की जब मैं बात करती हूँ, multi potential. The next world is multi potential. You need to do so many things at a time. Allow them to do. Make them a multi potential person. Yeah, be good at one. बट बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है और एक साथ में करना ज़रूरी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सेंसिटिव, एस, एम, मल्टी पोटेंशियल. ए इज ऑलवेज से अलाउ देम टू एक्नॉलेज. आज हम देख रहे, जब से हम आए, एवरीवन इज सेइंग थैंक यू. अलाउ देम टू एक्नॉलेज. अलाउ देम टू एक्नॉलेज देयर ओन एक्शंस. क्या हम अपने काम को थैंक यू नहीं बोल सकते? अगर मैंने कुछ अच्छा किया है, can't I say thank you? Get up in the morning with an acknowledgement that I've got a wonderful day today, to live a wonderful life, to make a difference in someone's life, and at the same time ensure that I enrich my life as well. एक भरा हुआ ग्लास है ना, वही खाली ग्लास पे पानी डाल सकता है.
और एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, हमारा एक ही काम होगा कि जो बच्चों का ग्लास है ना, उसको हमेशा भरा रखें। और वो कब भरा रहेगा? जब हमारा ग्लास भरा हुआ होगा। हमारा खाली ग्लास से हम उनका ग्लास नहीं भर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हो? सो एक्नॉलेजमेंट, लर्न, टीच देम टू एक्नॉलेज। SMAR, R इज रेलेवेंट एंड रिलीजियस। हम कोई भी फॉलो करें, कोई भी धर्म, कोई भी थॉट प्रोसेस, रिलीजन इज नॉट इन द, एक मूर्ति में रिलीजन नहीं है, एक वैल्यूज में रिलीजन है, एक थॉट प्रोसेस इज रिलीजन। मेक देम रेलेवेंट एंड रिलीजियस। उससे क्या होगा? जब भी कोई परेशानी, व्हेनेवर देयर इज इमोशनल इम्बैलेंस, दे नो वेयर टू सीक गाइडेंस फॉर। गीता का ज्ञान है, किसी का भी ज्ञान है, कॉन्स्टेंटली घर में रखें आप। एक लाइट, वी वांट आवर चाइल्ड्स टू बी, किड्स टू बी लाइक अ लाइट। तो एक अखंड ज्योति आपके घर में रखो, अखंड दीवा घर में रखो। दैट्स एन एनर्जी विच इज ऑलवेज बर्निंग। उसको आप रोज तेल देते हो। उसी तरह वो जब बच्चा घर में अखंड ज्योत देखता है, तो उसके आंखों में, उसके दिमाग में, उसके शैडो में अखंड ज्योत की तरह ब्राइटनेस हमेशा रहती है। सो मेक देम रेलेवेंट एंड रिलीजियस। डोंट मेक देम फील क्वेश्चन। अगर वो कोई क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब उसको साइंटिफिकली ढंग से दो आप। आईटी के रिलेटेड रेलेवेंट अपने आप हो जाएगा, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, बट ग्राउंडेड इन रिलीजन को रेलेवेंट हमें रखना है। इंडिया अगर आगे आएगा इन द फ्यूचर एज अ सुपर पावर, विल बी ओनली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। आवर किड्स शुड नॉट रन फ्रॉम आवर स्पिरिचुअलिटी। Otherwise, when they go in the world is looking for India for spirituality, and our kids are away from it. सही है क्या? दुनिया हमें एक मिरर की तरह देखने वाली है, तो हमारे मिरर में हमारे बच्चे हैं, वो सबको दुनिया को एक मिरर दिखाए ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो स्मार्ट में आ जाता है सेंसिटिव, मल्टीपोटेंशियल, एक्नॉलेजमेंट, रेलेवेंट, ग्राउंडेड इन रिलीजन, एंड लास्ट टी आता है टीम बिल्डिंग। अकेले से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में डे बाय डे वी आर सीइंग, वी आर गेटिंग इनटू अ न्यूक्लियर फैमिली। वी हैव 1 किड्स, 2 बच्चे या 1 बच्चे। सो अब अकेला बच्चा हमेशा परेशान कहीं बार रहता है, उसे कोई दोस्त चाहिए, उसे कोई, सो अलाउ देम टू वर्क इन अ टीम। हाँ, टीम बिल्डिंग में बहुत कुछ सीखेगा वो, ही विल लर्न अ लॉट, ही और शी विल लर्न अ लॉट। कई बार शी और ही हैज टू डू, उसको बच्चे को पूरा काम अपने आप करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, उसमें भी एक लर्निंग है। कई बार साथ में मिलके काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, उसमें भी एक लर्निंग है। और बी अ को लर्नर इन द एंड, माय डियर पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स, बी अ को लर्नर साथ में इन दिस जर्नी ऑन दिस वंडरफुल प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। Ensure that we enjoy this journey on this planet Earth, and we thank every day to this earth. We give them a note of thanks every day, so that we breathe fresh, we live fresh, we live happy and healthy. Thank you so much.